So today's our topic is it is global financial institutions. So primarily we'll be focusing on Bretton Woods agreements. Now we refer it as Bretton Woods failure also. Then we will be discussing about New Development Bank, BRICS Bank, Asian Infrastructure Investment Bank and Asian Development Bank. ये आजकल के context में it is very important because there are some news about de-dollarization and having some other alternate reserve currency. So in this context, it is very important to know about Bretton Woods Agreement. Like in the history subject, you study about pre-Vedic era, then Mughal period, then pre-British, then after British era, then post-independence period. The same we have economic history also. Economic history में we generally quote Great Crash of 1929, or we quote Bretton Woods Agreement, we quote Bretton Woods failure, we quote East India success story, and we also quote East Asia, not East India, East Asia. We also quote East Asia miracle also. Then 2008 global economic crisis, then pandemic. The same way Bretton Woods Agreement is a very important landmark in the history of economics. What is this Bretton Woods Agreement? By virtue of this agreement in 1944, a global international monetary system was established. Now, the question is, what is international monetary system? If you go back to 18th century, 19th century, or prior to that, trade was mostly localized. Then simultaneously it went international trade. From barter system, we switched on to use of coins. Initially it was silver coin. Then it moved to Spanish coins. Then ultimately to gold. Then ultimately to currency. Then again, there was a problem of which currency should be used for international trade. So in that context, Bretton Woods Agreement conference was held in Bretton Woods. Bretton Woods is the name of a place in USA. Near about 44 countries participated there with more than 700 delegates. And this conference lasted for 3 weeks. Imagine, international conference in 1944 that lasted for 3 weeks. So you can understand what was the seriousness of this issue. The main two philosophies, the main two players, economists who were playing the role were world known J.M. Keynes. We often read in CBSE books Keynes theory. J.M. Keynes, he was from British Treasury, and H.D. White, he was from US Treasury, representing their respective countries. Somehow detail हम बाद में पढ़ेंगे. So it was decided that gold was the standard of the, and it was linked with the US dollar. It was decided there in the conference. Prior to that, the countries used to have their own
currencies, they used to have their valuation exchange rate as per their gold which they were having. But after that it was decided कि US will print the dollar against gold reserves, and US has the capacity to print the dollars. So this was the one landmark decision in the Bretton Woods Agreement. Other main decisions were establishment of World Bank and establishment of International Monetary Fund. Fine. Now coming back to currency, exchange of currencies. The ingredient, the important point in the Bretton Woods Agreement was that it was agreed that there will be fixed currency exchange. What does that mean? Each country has its own currency, but its value in the international market, that means for making payments in the international trade, will be linked with the gold they have. And they were permitted to have, we use the word there, marginal variation. Marginal variation they could have, they could afford, but that was subject to the approval of the International Monetary Fund. ये तब डिसाइड हो गया. एक पॉइंट याद रखना है कि इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज रेट्स. दूसरा पॉइंट, इट वाज फिक्स्ड, इट वाज नॉट फ्लोटिंग, जैसे आजकल फ्लोटिंग है. इट वाज डिसाइडेड इट विल बी ए फिक्स्ड. नंबर 2. तीसरा है, it will be in terms of US dollars, who US dollar will issue, it will have its value subject to gold reserves which the US will have. ये it was decided. कोई US डॉलर पे हमने ट्रेड करना है, US डॉलर का वैल्यू होगा as per the gold reserves US will have. फाइन. ये सिलसिला चलता रहा कब तक? 1970 तक. It was agreed by all the global countries. It was monitored by International Monetary Fund, and it went off successfully up to 1970. World Bank भी create हो गया, IMF भी create हो गया. So this is in short what is Bretton Woods Agreement, how it was established. Now we come to collapse of Bretton Woods Agreement. Why we call it a collapse, and what were the reasons that it collapsed? क्या कारण है? आजकल वो एज ऑन डेट फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं है. एज ऑन डेट इट इज फ्लोटिंग. इट इज राइट फ्रॉम 1970. नंबर 1. Number 2, as on date, it is not linked with the US डॉलर. अभी हम वैसे कहते हैं ना, ट्रेड करते हैं US डॉलर में, ये रिजर्व करेंसी है, बट ऑफिशियली इट्स नॉट लिंक्ड टू US डॉलर. ये अभी हम पढ़ेंगे. पहले हम देखेंगे व्हाट इज द रीजन व्हाई दिस ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट फेल्ड. अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि व्हाट इज ब्रिटन वुड एग्रीमेंट. इज इट क्लियर? क्यों? Am I audible? Yes, sir. Okay. So now Bretton Woods Agreement is clear. Now we go in the collapse of the Bretton Woods Agreement. सबसे पहला चीज ये था कि US ट्रेड डेफिसिट. US का ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया. That means US was importing more than what it exported. So this was with the result क्या है? इसके जो गोल्ड रिजर्व्स है they were depleting.
So the first reason for collapse of Bretton Woods Agreement was increasing trade deficit of USA. President Nixon was the president of USA, he who decided to delink US dollar with gold. So this was one of the reasons for Bretton Woods failure. Number 2 क्या है? Inflation. Global जो बाकी world countries while adjusting their exchange value vis-a-vis gold reserves they had, it had resulted in the inflation in many countries of the world, including the USA. So second reason, we should know it is inflation. Third, the most important, speculation. एक dangerous element होता है. Sometimes it helps a lot to book profit, sometimes it creates catastrophes. Speculation was that the system is not working, international trade is not working, there are surplus inventories, world is facing recession. In this scenario, some speculators, they booked the profit. स्पेकुलेशन में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, जैसे यहाँ स्टॉक एक्सचेंज में होता है. Some booked the profit and some lost. With the result, the value of the currencies, different currencies vis-a-vis dollar, it was heavily fluctuating. So fluctuation of any country is detrimental to the interest of that economy as well as to the world. So we can say speculation was one of the big reasons for Bretton Woods failure. Fourth point is lack of flexibility. What do you mean by lack of flexibility? Since the exchange value of a currency of a country was fixed, so its economic position, even if deteriorates or improves significantly, it did not have any impact on the exchange value of the currency. So we can say there was a lack of flexibility. क्योंकि क्या है, suppose when an economy prospers, develops, its currency should also prosper. Its currency should also progress. Its currency should also be demanded. So when there is a fixed exchange rate system, so the impact of improvement in the economy didn't reflect in the exchange value of the currency. So this was also one of the reasons. Last is alternative systems. क्या हुआ when there was a total chaos in the international monetary system? Some countries started extensively devaluing their currency. It helped them in international trade. Some countries use it to adjust their currency with otherwise. So they could feel, yes, if we have a fluctuating rate of system of currency, that will be helpful to their respective economies. And they gradually came to the conclusion, no, this fixed system of exchange rate system is faulty. So put all these factors in totality, this was the reason for Bretton Woods Agreement. So ultimately what they did, they delinked US dollar from gold reserves
So that's why as on date you will find that when we say our currency has a fiat value. अब जैसे हमारे पास इंडिया में we have a foreign exchange reserve, same is with every country. It is not backed by any gold. It is जैसे हमारा लिमिट है 200 लाख करोड़ है, इतना ही है हमारे पास 200 करोड़, not more than that. पहले होता था it was purely against gold. Same is the case with USA or any country. Fine. So in lump sum, if you are asked in interview or in essay writing, you can mention the reason for Bretton Woods failure is combination of trade imbalances, inflation, speculation and inflexibility. ये 4 वर्ड आपने याद रखने हैं. You should mention it in your answers. Or otherwise, if we are asked what is the sound system of this foreign exchange rate of a currency, we can say we should have a sound this trade deficit, trade balance of payment. Inflation should be balanced, stagnant होनी चाहिए, stable inflation होनी चाहिए. Speculation should not, there should be over speculation नहीं होनी चाहिए. Speculation should not be there. And secondly, it should be flexible also. Fine. ये रहा हमारा जो what is Bretton Woods agreement. Now we come to World Bank and IMF, because it was also decided in the Bretton Woods agreement. Now what was the mandate given to the World Bank? What was the mandate given to IMF? Basically, you should know World Bank, it's a World Bank group comprising of, we call that IBRD, International Bank for Reconstruction and Development. It provides loans, credit and grants to developing countries, poor countries. We can say in other layman's language, World Bank is a development bank. It helps economies to grow, to develop, especially the poor. Second part of this World Bank group is IDA, International Development Assistance. It provides either zero interest loans or very low interest loans to very poor countries, low income countries. That is also the part of the World Bank group. And second is International Finance Corporation. It's a sort of consultancy. It gives investment advices, asset management to companies and governments, both companies, private companies as well as to governments. This is done by International Finance Corporation. Fourth is Multilateral Investment Guarantee Agency. Suppose there is some financer, some bank is financing some big project to some, say, poor country. And the financer sometimes has a doubt whether this project will be successful or not, then my money will be duped. So I will lose the money. So this MIGA, it comes, and World Bank, it comes in the picture, it stands no problem, we stand guarantee for you. That is called Multilateral Investment Guarantee Agency. It gives the guarantee. In case that country, that economy fails to repay it, we as an international multilateral organization, we stand guarantee for it. That is the role of MIGA, M-I-G-A. Then last comes International Center for the Settlement of Investment Disputes, ICSID. Suppose there is some dispute between the two economies, between the two parties.
then this agency takes role of a dispute settler. But याद रखना, India is not the member of this organization. बाकी चारों में India is member of the organization. So it can be asked in the question also. MCQ में आ सकता है. So we are not part of, because India believes that जहाँ भी हम कहीं dispute होगा या किसी भी दो कंट्री में, they should settle it mutually, bilaterally. तो we also believe in that. तो इस करके they opted out of this agency. ये रहा इनका मैंडेट क्या मिला टू दिस वर्ल्ड बैंक. अब इनका प्राइमरी टारगेट क्या था? देयर प्राइमरी टारगेट इज टू फोकस ऑन इमर्जिंग इकोनॉमीज और लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज. क्या टारगेट है? देयर शुड नॉट बी मोर देन 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन लिविंग बिलो $1.90 पर डे बाय 2030. इन्होंने तब टारगेट आज से 10-15 साल पहले रखा कि हमारे 2030 तक क्या है टारगेट जो होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी मोर देन, दैट मीन्स अभी मोर देन 3% है, मोर देन 3% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन हु आर लिविंग बिलो $1.90 पर डे. ये इनका एक टारगेट है. दूसरा है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी इकोनॉमीज है जो लोअर 40% है, जो लोअर 40% है, उनकी जो है इनकम है, उनकी जो पॉवर्टी है, दैट शुड बी एलिवेटेड. उनका जो इनकम बढ़ानी चाहिए, पॉवर्टी कम करनी चाहिए. दिस इज द प्राइमरी गोल ऑफ मैंडेट टू द वर्ल्ड बैंक. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में क्या है, वर्ल्ड बैंक ने डिफरेंट कंट्रीज का असिस्ट करता रहता है. अब कैसे करता है? हाउ it switches the resources from the rich countries to the developing countries. कैसे? ये रिच कंट्रीज को कहते हैं डेवलप्ड कंट्रीज को आप भाई दे दो, जैसे हमने कहा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है या IFC है. उनको टेक्नोलॉजी मांगते हैं, उनको पैसा मांगते हैं, एंड दे एक्सटेंड द सेम एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू पुअर कंट्रीज. दैट मीन्स दे आर शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज. स्पेशली इसमें फोकस करते हैं ये अफ्रीका में. बाय कैसे? बाय स्परिंग ग्रोथ. जैसे एक टाइम था एड्स वाज द बिग प्रॉब्लम. कर्टेलिंग एड्स पे जितने प्रोजेक्ट थे दे वुड फाइनेंस इट. गवर्नमेंट्स टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज, उस पर काम करते थे. जब भी कोई वार होता था उस टाइम वो दे वुड प्रोवाइड द असिस्टेंस. एज ऑन डेट वर्ल्ड बैंक के पास $318 बिलियन इनके पास कैपिटल है, जिसमें मोस्टली 93% इज कॉलेबल. कॉलेबल क्या होता है? और 7% इज पेड. कॉलेबल मीन्स दैट पार्टीज हैव एग्रीड टू पे एज एंड व्हेन यू डिमांड. 7% they have already paid to the World Bank, and that is why that money plus money borrowed from the different countries, that they are being used for giving loan assistance to the different poor countries. To become a member of World Bank, याद रखना चाहिए, to become a member of IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, or to become a member of International Development Agency, it is mandatory that a country should be the member of IMF. So International Monetary Fund का member बनना prerequisite है to become the member of World Bank, IBRD. याद रखना चाहिए. So in a way I can say IMF is more important player in the international monetary system, in the development of the economy across the globe. This was the mandate given to World Bank. अभी इस पे कोई किसी को क्वेश्चन? वर्ल्ड बैंक इज ओवर फिलहाल. सो आई नाउ मूव टू IMF. IMF में क्या मैंडेट है? IMF का मैंडेट ये है, जैसे अभी हमने देख लिया
to promote international monetary cooperation. International monetary cooperation means बैलेंस ऑफ पेमेंट में, इंटरनेशनल ट्रेड में, या किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट, दे डोंट हैव द एक्सपोर्टेबल दिस फॉरेन एक्सचेंज इंपोर्ट पे करने के लिए, सो उसमें उस टाइम ये उस कंट्री का मदद करते हैं और उसमें दे हेल्प इन रेगुलेटिंग एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेशन टू दैट गवर्नमेंट. टू प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म भी है. जैसे हम कहते हैं कि 90s में हमने LPG लगाया, सो सर्टन रिफॉर्म्स वर थ्रस्ट अपॉन अस, क्योंकि जब IMF फाइनेंस करता है, इट्स फाइनेंसेस विद इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस. टर्म्स एंड कंडीशन क्या होता है? यू हैव टू चेंज योर पॉलिसीज इन योर सॉवरेनिटी एज पर देयर एडवाइस. सो दे से प्रोवाइड पॉलिसी एडवाइस. आपने इकोनॉमी को ओपन करना है, आपने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, आपने यहाँ करेंसी को डिवैल्यू करना है, you have to allow FDIs, ऐसे n number of, there are very good suggestions also, but there are some suggestions which are having vested interests. Okay. तीसरा रोल क्या मिला इनको, मैंडेट क्या मिला इनको? टू प्रोवाइड कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट. यानी कि हर एक कंट्री को अपनी अपनी कैपेसिटी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की, थिंकिंग की, एक पॉलिसी डिज़ाइन की, हाउ टू मोबिलाइज रिसोर्सेज की है. दैट में ये दे गाइड, दे गिव इंसेंटिव, दे गिव सपोर्ट टू दैट कंट्री. लास्ट बट नॉट लीस्ट इज शॉर्ट एंड मीडियम टर्म लोन्स देते हैं कंट्रीज को. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आती है, उस टाइम IMF इमीडिएटली कम्स टू द रेस्क्यू. एंड दे हैव एंड रिसोर्सेज कहाँ से लाते हैं? रिसोर्सेज इनका आता है कि जो मेंबर्स हैं, दे हैव अ कोटा. और बाद में पढ़ेंगे हम कोटा कैसे करते हैं. कोटा प्लस दे हैव सम, वी कॉल दैट न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो और एंड बायलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट कंट्रीज मेंबर्स. वहाँ से रिसोर्स कलेक्ट करके दे एक्सटेंड लोन्स टू इट्स मेंबर्स. एंड दे क्रिएट, IMF also creates certain fund for emergencies. One such fund is Catastrophe Containment and Relief Trust to provide immediate debt relief to low-income countries affected by the crisis, thereby creating space for spending on urgent health needs rather than debt repayment. सपोज किसी कंट्री कर्जे से डूब जाती हैं, जैसे पाकिस्तान अभी हुआ, श्रीलंका अभी हुआ, ऐसे सम कंट्रीज हैं, तो दे हैव सम दैट कॉल्ड डेट रिलीफ. वो कहते हैं कि यार पहले आपने जो कंट्री में जो हेल्थ के इश्यूज हैं, टॉप प्रायोरिटीज हैं, उस पर खर्च हो, तब तक कर्जा के लिए दे प्रोवाइड सम रिलीफ फॉर लोन रिपेमेंट्स के. पहले आप रिपेमेंट छोड़ो, उसके लिए हम पैसा देते हैं, यू फोकस ऑन हेल्थ इश्यूज. दिस वॉज ऑल अबाउट mandate to World Bank and IMF and Bretton Woods agreement. Now we come to in detail IMF के बारे. जैसे हमने पढ़ा how it was created, ये तो हमने we got it. अब इसमें गवर्निंग बॉडी क्या होते हैं? इट इज अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं इसमें. ईच गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय हिज रेस्पेक्टिव कंट्री. मिनिस्ट्रियल कमिटीज होती हैं, दे टेक द कॉल. इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमिटीज होती हैं, डेवलपमेंट कमिटीज होती हैं. एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसमें, दैट इन फैक्ट दैट इज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड विच रन्स द IMF. इट हैज 24 मेंबर्स. उसका इलेक्शन होता है. अब इसमें क्या है, जो इसका कैपिटल है, इट इज मोस्टली बीइंग प्रोवाइडेड बाय, सबसे ज्यादा इसका यूएस ने प्रोवाइड किया है. यूएस एंड यूरोप कंट्रीज का है इनका टोटल जो कोटा कहते हैं. सो इट हैज सब्सटेंशियल पोर्शन जो इट कम्स फ्रॉम यूएसए. दैट इज वाई इसके जो वोटिंग राइट्स होते हैं, सपोज कोई डिसीजन लेना होता है, फर्स्ट दे ट्राई टू हैव अ कंसेंसस. इफ देयर इज नो कंसेंसस देन दे हैव द वोटिंग राइट्स. वोटिंग राइट्स में क्या होता है, वोटिंग राइट्स में जिसके वोटिंग राइट्स ज़्यादा होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा है यूएसए को. सो वी से दैट यूएसए हैज वीटो राइट्स, वीटो पावर्स.
तो इसी कंटेक्स्ट में इसको क्या है, एक क्रिटिसिज्म होता है यहाँ, ये इसका फ़ायदा उसी को वही उठा सकता है, इसकी पॉलिसी उसी हिसाब से बनते हैं जो अमेरिका की मर्जी होती है. सो इन अ वे अमेरिका पुशेस इट्स एजेंडा थ्रू IMF एंड वर्ल्ड बैंक, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग में क्या है, यू हैव द वोटिंग पावर्स, जिसमें हमारे इंडिया का अभी 2.67% है, USA का 16% है. अब हैं IMF की रेगुलेटरी फंक्शंस क्या है. रेगुलेटरी फंक्शंस में ये करता है, इट लेज द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर एक्सचेंज रेट पॉलिसीज पे इट प्रेस्क्राइब्स द गाइडलाइंस. अब देखें, अक्सर हम अखबार में पढ़ते हैं एज पर IMF वो ये कहते हैं ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, बिकॉज दे ऑलवेज यूज टू डेवलप सम रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर्स, उसके बेसिस पे दे प्रेस्क्राइब सर्टन पॉलिसी गाइडलाइंस, दे प्रेस्क्राइब सर्टन एडवाइसेस, वही उसी को कहते हैं क्या, उसके बारे में वो कहते हैं कि नो, फॉर इफ यू हैव टू अवेल आवर लोन देन यू हैव टू बी फॉलो दीज गाइडलाइंस, दैट इज कॉल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, especially in the case of exchange rate of currencies. दूसरा है फाइनेंशियल फंक्शंस. फाइनेंशियल फंक्शंस में सपोज इफ वी हैव, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री, या हमारे पास एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री नहीं है, एक्सपोर्ट्स कम है, एंड वी डोंट हैव फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू मीट आवर इम्पोर्ट बिल्स. एट दैट टाइम IMF helps us in making those payments, यानी कि it provides us as foreign exchange on loan. So it has financial functions also. Plus it also gives loans for other development activities also. पर primarily क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम है उसको ठीक करने के लिए. कंसल्टेटिव फंक्शंस, टेक्निकल या काउंसलिंग असिस्टेंस करता है IMF. जैसे हमारे पास कोई प्रोग्राम होता है कि हमारे यहाँ सैनिटरी का इश्यूज़ कंट्री में, हेल्थ इश्यूज़ क्या है, हाउ टू मिटिगेट दिस, वही रिमोट एरियाज़ में दे कम आउट विद ऐसा 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 करो, इसमें ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ओके हम आपको इतना सपोर्ट कर सकते हैं. और हाँ सवाल, रिसोर्सेज क्या है. रिसोर्सेज के क्या है, रिसोर्सेज क्या है, IMF कोटा. अब रहा सवाल IMF कोटा. IMF कोटा कैसे, किस बेसिस पे डिसाइड होता है. जैसे अभी हमने कहा अमेरिका को सबसे ज़्यादा है, ऑन व्हाट बेसिस द IMF कोटा इज डिसाइडेड. इट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ GDP, openness of the economy, economic variability. How much is the economic variability in the country? Economic variability क्या होता है? Economic variability होता है कि कहीं ये एक ही एक्टिविटी या एक या दो एक्टिविटी पे इसकी इकोनॉमी तो नहीं चलती है. क्या यहाँ इक्विलिब्रियम है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर तीनों चलते हैं कि नहीं? क्या एक्सपोर्ट्स चलता है कि नहीं? कि 100% डिपेंडेंट इंपोर्ट में. किसी कंट्री की क्या है, दे आर मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द टूरिज्म, दैट मीन्स वहाँ इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी नहीं है. सो इस पे क्या, दे अवार्ड द पॉइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच दे असाइन वेट्स. उसी बेसिस पे वो दे डिसाइड कि किस कंट्री को कितना कोटा देना चाहिए. उसमें क्या है, GDP पे 50% वेट है आपका कंट्री का. ओपननेस, लिबरलाइज इकोनॉमी है कि नहीं है, 30% है. इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी है 15%. इंटरनेशनल रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये 5%. सो इन चार को मिला के दे कम आउट कि इसका कितना वेट मिलना चाहिए इसका. इंडिया का कोटा जो है इट इज एज ऑन डेट 2.76%, चाइना का 6.41%, US कोटा है 17.46%.
विच ट्रांस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा यूएस का है, दैट इज इट हैज़ ए वोटिंग राइट्स, यानी कि अगर वोटिंग भी करते हैं यूएसए का वेट सबसे ज़्यादा है, जहाँ इसकी मर्जी होगी वही डिसीजन होगा। सपोज कोई मेंबर कंट्री लोन लेना चाहते हैं, जितना इसका कोटा है 200% ये लोन ले सकता है उसमें। अगर इस साल नहीं लिया, अगले साल लिया, तो एक्यूमुलेटेड 600% ऑफ द कोटा इट कैन टेक द लोन। दूसरा एक रिजर्व ट्रंच है। व्हाट इज रिजर्व ट्रंच? वट एवर कोटा is fixed for a country, 25% of that it retains with itself, although that is the property of the IMF। तो वो रिटेन करके अगर किसी टाइम इस कंट्री को, मेंबर को, वो पैसे की जरूरत पड़ती है, द फर्स्ट राइट ऑन इट इज ऑन द रिजर्व ट्रंच। इसमें क्या फायदा है? व्हाट इज द एडवांटेज? द मेंबर कंट्री कैन टेक दिस अमाउंट विदाउट एनी इंटरेस्ट और विदाउट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द IMF। नहीं तो बाकी में इफ यू एक्सीड देन द IMF विल सेट इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस, लेकिन इफ इट इज विद इन यूर 25% ऑफ द कोटा और विद इन द रिजर्व ट्रंच, दैट मीन्स you will get the loan without any terms and conditions। अब रहा सवाल कैसे, व्हाट इज द करेंसी? IMF में there is one that is called special drawing rights। It is an accounting unit, it is not a currency। So whatever your quota is, you have to pay in your own currency। That currency is converted into, there are 5 currencies approved in the IMF: US dollar, euro, Chinese renminbi, Japanese yen and British pound sterling। In all these 5 countries have different weights। Every day at 12 noon in the London market, their rate is assessed and it is declared। So your currency is weighed across as per those average of these 5 currencies। That is the value, special drawing right of your currency। Then the whole quota pooled by different countries is converted into special drawing rights। So within the countries, they can exchange any 5 currencies against your SDRs with the IMF as well as with the other members of the IMF। So हमने मूड पॉइंट याद रखना, इट्स नॉट अ करेंसी बट इज अ स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बट यू कैन एक्सचेंज अगेंस्ट एनी 5 करेंसीज विद इन द members of the IMF। Latest country which was included in these currencies basket was Chinese yuan, renminbi। अब रहा सवाल, व्हाट इज द क्राइटेरिया? हमारा रुपये क्यों नहीं, या जापान, बाकी कंट्रीज की करेंसी क्यों नहीं इसमें ऐड होती है? उस पर भी क्राइटेरिया क्या है उसका? एक है एक्सपोर्ट क्राइटेरियन एंड द फ्री यूजेबल क्राइटेरियन। दैट कंट्रीज करेंसी शुड बी freely usable in international payments, international trade, and that country should be one of the top 5 exporters of the world। उस कंट्री की करेंसी को that is included in the basket of these currencies। This is all I had to share you about इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब किसी को कोई क्वेश्चन IMF के ऊपर? एनी क्वेश्चन? क्यों? अदरवाइज आई विल मूव टू अदर टॉपिक। आवाज आ रही है कि नहीं? Yes, sir. पक्का? नींद तो नहीं पड़ी? Yes. No, sir. ओके No, ओके sir. ओके ओके ओके। अभी जब कुछ टाइम के बाद ना वी विल स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चंस, टेस्ट लेंगे, तब देखना यू शुड बी रेडीली आंसरेबल। हाँ,
Okay, fine. Now we move to New Development Bank. न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको पहले ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, आजकल ये बहुत न्यूज़ में आता रहता है। क्या है, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने दे हैव फॉर्मड दिस बैंक। Initially its name was BRICS Bank. Subsequently it was changed to New Development Bank. Its members, original promoting members कौन कौन हैं? Brazil, Russia, India, China and South Africa. Now new members have been added to it: Bangladesh, UAE and Egypt. Uruguay is also in the process. In fact that has been approved, but उन्होंने अभी उसमें क्या होता है, रेटिफिकेशन करनी होता है, एग्रीमेंट ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट पे साइन करके दे हैव टू डिपॉजिट देयर शेयर। इसमें क्या है, जो $100 बिलियन का इसका शेयर कैपिटल है, तो 50% दे हैव बीन पेड बाय दीज 5 कंट्रीज। फाइन। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, दिस creation of a new bank, BRICS Development Bank, it was mooted by India originally in 4th BRICS Summit. Only idea was mooted, but formally when it was launched, it was 6th BRICS Summit in Fortaleza, Brazil. So we can say it was established in 2014 under the Treaty of 6th BRICS Summit इन ब्राज़ील। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ शंघाई, चाइना में है। अगेन इसके है रीजनल ऑफिस हैं, एक को कहते हैं अफ्रीका रीजनल ऑफिस, दूसरे को कहते हैं अमेरिकन रीजनल ऑफिस, तीसरे को कहते हैं यूरोएशियन रीजनल ऑफिस एंड चौथे को कहते हैं इंडियन रीजनल ऑफिस। ये 4 रीजनल ऑफिस है। इसको ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है इन यूनाइटेड नेशंस में भी। अब इसमें भी क्या रखना है, एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें जो भी प्रमोटर हैं ऑल हैव इक्वल राइट्स। जैसे हमने वो वर्ल्ड बैंक या IMF में पढ़ा था कि या एशियन डेवलपमेंट बैंक में है, वहाँ ऑल प्रमोटर्स, ऑल मेंबर्स डोंट हैव द इक्वल राइट्स। यहाँ हैं इक्वल राइट्स। सो ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव इसका है टू हेल्प फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द इमर्जिंग इकोनॉमीज। अगेन इमर्जिंग इकोनॉमीज वही हुई है जो आर डेवलपिंग इकोनॉमीज। इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। ये माना जाता था कि वर्ल्ड बैंक में, IMF में जब तक जो बिग कोटा होल्डर्स थे, जहां उनकी इच्छा होती थी वहीं उन्हीं को लोन मिलता था, या जिन कंडीशन पे लोन मिलना चाहिए था उनके कंडीशन पे होगा तब मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज द ऑब्जेक्टिव टू बी एन अल्टरनेटिव टू द वर्ल्ड बैंक एंड IMF। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली है जो फाइनेंशियल कोऑपरेशन है बिटवीन द प्रमोटिंग बैंक्स, इनको प्रमोटिंग कंट्रीज, इनको इम्प्रूव करने के लिए। और ऑब्जेक्टिव क्या था? ठीक है, ये तो हमने अल्टरनेटिव बनाया, बट एट द सेम टाइम बी वर्क इन पार्टनरशिप विद दोज मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो वर्ल्ड में हैं, इवन इफ इट इज IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो भी हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके आगे। एंड क्या है? प्रमोशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। सस्टेनेबल वर्ड पे बड़ा स्ट्रेस है इसमें। एंड की माइंड्स क्या है? एनवायरनमेंट पे। व्हेन वी यूज सस्टेनेबल इट मीन्स एनवायरनमेंट पे फोकस ज़्यादा है, ग्रीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस है। इसमें भी क्या है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है। इसमें प्रेसिडेंटशिप है, रोटेशनल होती है, ऑटोमेटिक। 1 president and 1 vice president
इट इज़ रोटेशनल। फोकस क्या है इसका न्यू डेवलपमेंट बैंक का? क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन, एनवायरमेंट, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अभी एज ऑन डेट द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक इज इंडिया एंड चाइना। ज़्यादा जो इसका बेनिफिट है वो इंडिया और चाइना ने ले लिया है। जैसे अभी इंडिया में कुछ जो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें एक्सटेंसिव फाइनेंसिंग यहाँ से हो गई। अब रहा इससे कुछ कंसर्न्स भी हैं। इनिशियली इट वाज सेड दैट कि ये दिस हैज़ वर्चुअली बीन फेलियर। आज 2 साल पहले 3 साल पहले इट वाज सेड कि फेलियर का रीज़न क्या था? रीज़न काफ़ी कह देते थे। पहले ये कहते थे कि इनके लो डिसबर्सल, लोन तो सैंक्शन करते हैं लेकिन डिसबर्सल कम करते हैं। जैसे $12 बिलियन इनने ये सैंक्शन अप्रूव किए हैं, तो 2022 तक इन्होंने $1 बिलियन ही डिसबर्स कर दिया। लेकिन 2023 में दे हैव डिसबर्स about $4 billion, and as per their policy statement they say on an average will be disbursing about $4 billion, $3 to $4 billion every year, and that among the next international financial institution that is considered to be fairly good amount. दूसरा क्या है इसका है कंसर्न क्या है? पॉलिटिकल टर्मोइल। इनके जो मेंबर कंट्रीज हैं, अच्छा जैसे इंडिया मेंबर है, इसका चाइना भी मेंबर है। देयर इज अ पॉलिटिकल turmoil between India and China. That is also considered to be one of the reasons. Russia इसका मेंबर है। Russia is embroiled with Ukraine. तो इसके जो प्राइम मेंबर्स हैं वहाँ पर पॉलिटिकल वो जो इंटरनेशनल उनकी पॉलिटिकल स्थिति है वो ठीक नहीं है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए कंसर्न फॉर द वर्ल्ड इन्वेस्टर्स और वर्ल्ड इन द वर्ल्ड कंट्रीज। तीसरा है सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। ये कहते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल, बट व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल? इन्होंने फाइनेंस कर दिया कहाँ? अफ्रीका में अमेजन ट्रांसपोर्ट, कुछ अमेजन हाईवे इन्होंने, तो दैट इज अगेंस्ट एनवायरमेंटल रूल्स। इसलिए पीपल से दे शुड कम आउट क्लियरली अबाउट देयर सस्टेनेबिलिटी इश्यूज। किस प्रोजेक्ट को वो कहेंगे सस्टेनेबल है? चौथा क्या है? एनवायरमेंट कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स में क्या है? जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड्स फॉर एनवायरमेंट कंप्लायंस। इनकी पॉलिसी है जो वी विल गो विद द एनवायरमेंटल स्टांस ऑफ दैट बोरोइंग कंट्री। उस कंट्री का क्या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड है, रूल्स हैं, उसके हिसाब से हम इफ इट मीट्स, सपोज इंडिया ने लोन लेना है इनसे, मे बी इन द विजन ऑफ इन द आइज ऑफ वर्ल्ड बैंक ये प्रोजेक्ट जो है इट इज नॉट इन फेवर ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बट इंडिया पॉलिसी में को कहता है हाँ इट डजेंट मैटर। सो दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक दे विल फाइनेंस इट बिकॉज इट्स मीट्स यूर रिक्वायरमेंट, फाइन, नो प्रॉब्लम, वी डोंट हैव एनी इशू। सो ये क्रिटिसिज्म का पॉइंट इस पे बन रहा है। और इसकी जो रेटिंग है इसमें है AA+। ऑल्दो इट्स अ गुड रेटिंग बट इट इज नॉट एज गुड एज व्हाट IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, दे हैव AAA। हमारे को इसमें क्या है? इसमें ओनली AA। दे से कि एज पर देयर पॉलिसी स्टेटमेंट की कीपिंग इट्स एज इन व्यू, it is not bad, it is also good. Maybe in the course of time we will also get A+, AAA. So rating abhi it is one step below the highest standard of this rating. ये है all about this. अब इसमें एक पॉइंट आता है कि what is the difference? एक मिनट, what makes न्यू डेवलपमेंट बैंक गवर्नेंस एज एन एजेंडा एंड यूनिक? क्यों इसको अलग मानते हैं हम? वाई दिस इज इन न्यूज़, आजकल हॉट न्यूज़ में चल रहा है। वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी समथिंग डिफरेंट फ्रॉम IMF, वर्ल्ड बैंक? वाई मोर एंड मोर कंट्रीज आर शोइंग इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग ब्रिक्स?
अब ये जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 जैसे मैंने कहा, इसके प्रमोटर्स क्या हैं? दे आर क्रिएटेड बाय, लेड बाय एंड लेड बाय इमर्जिंग इकोनॉमीज। जिन्होंने इसको क्रिएट किया वही इसको लीड कर रहे हैं, और जिसको इसका बेनिफिट मिलना है वो भी इमर्जिंग इकोनॉमीज में। इसमें डेवलप्ड इकोनॉमी का मैनेजमेंट का रोल कोई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, पावर सबके है एक जैसे, नो कंट्री हैज द वीटो पावर्स। नंबर 3 क्या है? दे प्रोवाइड लोन्स इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज करेंसी। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे ये फ़ायदा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन रिस्क दैट इज बीइंग कवर्ड। चौथा क्या है? इसमें क्या है? जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स हैं, इट इज एज पर द पॉलिसी ऑफ द बोरोइंग कंट्री दैट helps them to get easily loan from this multilateral institution. इसका जो स्टाफ मैनेजमेंट है दैट इज वेरी लीन, यानी कि दिस इज हाईली टेक्नोलॉजी, इट इज टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनकी ये जो बैंक है। असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स इज प्योरली डन ऑन टेक्नोलॉजी बेसिस। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज मॉनिटर्ड बाय टेक्नोलॉजी बेसिस। सो दिस इज इसमें उसमें वो बाकियों में क्या फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। दीज आर द रीजंस व्हाई दिस इज कंसिडर्ड टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर बैंक्स एंड व्हाई द पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस, नंबर 1। नंबर 2 क्या है? दे आर कंटेम्पलेटिंग इन ट्रेडिंग बिटवीन द मेंबर्स in their respective currencies. That means countries don't have to rely on foreign exchange, or we can say countries don't have to rely much bother about the exchange risk. कैसे एग्जाम्पल देता हूं मैं? अभी जो फोर्थ कमिंग है अक्टूबर में, इसका नया दूसरा सेशन आ रहा है, उसमें दिस इज एजेंडा आइटम, व्हाई डोंट वी float our own international reserve currency. As on date, US dollar is considered to be the most international reserve currency. They are intending to float their own international monetary reserve currency. That is why now people are showing interest in joining the BRICS, number 1. Number 2, the trade between the members will be in local currency. Suppose India imports a lot from Russia. So Russia has surplus of Indian rupees with them. So what they will do it? So if we have an arrangement with Brazil is a member of BRICS. So if they import something from Brazil, they can make the payment to them Brazil by Indian rupees. The same way we export something to Brazil. So Brazil can pay back to us Indian rupees. So this will create lesser demand for the dollars. So in a way, जो exchange risk से जो import export में फर्क पड़ता है, it will have a good impact on that. That is why it is considered to be different from other banks. A quick review on Asia Infrastructure Bank. Same way, that is a multilateral इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसका भी हेड ऑफिस है बीजिंग में, चाइना में है। लेकिन उसमें क्या है, सबसे ज़्यादा शेयर्स किसके पास है? चाइना के पास। रेटिंग उसकी ट्रिपल ए है रेटिंग्स, विद स्टेबल आउटलुक फ्रॉम द टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। $100 बिलियन है उसका। Now coming to Asia Development Bank. Same way, regional Asia Development Bank, it caters to the needs of Asia and Pacific areas. Countries में है 68 members हैं इसमें, $165 billion है। These also provide as an alternative, as a help, not alternative, as a help to the countries who are unable to get finance from IMF, World Bank. ये उसका सेम रोल इसमें भी
ADB में भी है। सो किसी को कोई क्वेश्चन, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल कॉल इट अ डे। हाँ जी Sir, is there any criticism about new development banks? हाँ बताया ना मैंने, क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जैसे एनवायरनमेंट पे है, सस्टेनेबिलिटी पे, इस पे ये इशू है कि जैसे इन्होंने ब्राज़ील में दे दिया, वहाँ उस हाईवे प्रोजेक्ट के लिए वहाँ डिफॉरेस्टेशन लार्ज स्केल पे हो गई। वो क्या है कि इनकी जो ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो इनकी पॉलिसी है कि बोरोइंग कंट्री की पॉलिसी है, दे शुड कीप देयर ओन स्टैंडर्ड, नंबर 1। नंबर 2 इनका ये है कि जो इनके मेंबर कंट्रीज़ हैं, अब जैसे इंडिया है, चाइना है, ये आपस में लड़ते रहते हैं। ये होगा दूसरा क्रिटिसिज्म इनका है। तीसरा क्रिटिसिज्म इनका है कि इन्होंने जैसे आज तक 12 बिलियन डॉलर्स का लोन सैंक्शन किए हैं। आउट ऑफ 12 बिलियन डॉलर्स दे हैव जस्ट सैंक्शन डिसबर्स्ड 4 बिलियन डॉलर्स। ये इनका क्रिटिसिज्म चल रहा है। Okay. हाँ जी, और किसी को कोई एनी क्वेश्चन? ठीक है सर, फिर करें। यस सर।